ان سے کوئی مدنی فیس لے لیجئے کہ جواب غلط ہے. جی باب المدینہ جواب. باب المدینہ سے جواب. اس کے بعد بنگلہ دیش سے آئے ہوئے سوال کو ہم سنیں گے بنگالی زبان میں، اس کا اردو خلاصہ بھی ہوگا. باب المدینہ سے جواب دیں. جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپا 70 گھوڑے تھے. اب ان کا کیا کروں؟ اصل اسکرین پر آنا ہوتا ہوگا، کچھ تو ہو جائے گا. اگر ان آ تو گئے نا، اب یہ ہو پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ ان سے پہلے جواب لے لیا جائے، درست ان کو پتا ہو کہ جواب درست کیا ہے، پھر ان کو اسکرین پہ آنے کی اجازت دی جائے. تو وقت بھی صرف ہو رہا ہے نا اس طرح. واللہ عالم جس کی جو نیت ہو، لیکن اسکرین پر آنے کے لیے تو آپ کو پتا ہے لوگ مرتے ہیں. اب یہ آ تو گئے، اب ان سے کیا لے لیں ہم، یہ بتا دیں. ان کو باندھو مدنی تربیت باندھو بھائی. دونوں کو. چلیں. جانی ساران بدرو احد پر درود، یہ بولو اس کو بھی پتا ہونا چاہیے. جانی ساران بدرو باب المدینہ میں جواب نہیں ہے اس کا مزید شاید. درود حق گزاران بیعت پہ. جو جواب دینا چاہ رہے وہ ہاتھ کھڑا کرے اور بتائیے. جی جواب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان، جو جنگ بدر کے اندر گھوڑے تھے ان کی تعداد 2 تھی. نہیں، یہ ویسے شاہنامہ اسلام میں 2 لکھے، شعر میں تھے ان کے پاس 2 گھوڑے، 6 زر ہیں 8 شمشیریں، پلٹنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں. یہ شعر شاہنامہ اسلام کا ہے. اور اس کو دلیل کیسے بنایا؟ ہو سکتا ہے 2 سے مراد اس نے کم، اور وہ شعر کا وزن بنانے کے لیے وہ 2 لفظ لکھ دیا اس میں. مگر رسالہ ابو جہل کی موت جو امیر سنن کا رسالہ ہے، اس میں 2 کا فگر نہیں ہے. جی جی بابا. ایسا جواب میرا خیال بن نہیں پڑ رہا. جانی ساران بدرو احد پر درود، جانی صحابہ کرام علیہ الرضوان کے پاس ایک گھوڑا تھا. ایک گھوڑا 70 یا 80 اونٹ، شکستہ کمانے، ٹوٹے پھوٹے نیزے اور پرانی تلواریں تھیں. یہ جو تفصیل ہے یہ رسالہ ابو جہل کی موت میں امیر سنت نے ہمیں عطا فرمائی ہے. اس رسالے سے انشاءاللہ عز و جل اس جمعہ کو مساجد میں بیان کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اس جمعہ کو جو ہمارے خطیب و مبلغین اسلامی بھائی ہیں ان سے مدنی التجا ہے کہ اس جمعہ کو اپنے جمعہ کی نماز میں جو بیانات کیے جائیں وہ رسالہ ابو جہل کی موت سے کرنے کی مدنی التجا ہے جو مقتۃ المدینہ سے ہدیتاً حاصل کیا جا سکتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا وہ ایک سوال کا جواب دے دیں اور پلیٹ لے لیں جلدی سے. ابو جہل کو جنہوں نے قتل کیا ان کے نام بتا دیں. پہلے آپ سن لیجئے پھر آپ نے مائک دینا ہے. مائک نہیں دینا ہے سوال، ان کو بھی پتا ہوگا تو نا. حاجی امین تو بیچارے وہ مصروف آج کل وہ علاقوں میں. جی جی جواب دیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ عز و جل ایک ماہ مدنی قافلے کا سفر کی نیت ہے انشاءاللہ. کب؟ محرم الحرام میں انشاءاللہ. انشاءاللہ. جن 2 صحابہ کرام نے بچوں نے ابو جہل کو قتل کیا تھا، جہنم حاصل کیا تھا، ان کا نام حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے.
तलफ़ुज़ में कुछ मसला है। और अवामी एक जो अंदाज है, हाँ, अवामी अंदाज में तो सही है। ये महाज है कि मुआद, वाव तो मुशद्दद है ना। हाँ, पेश खपे ना मिलमत जी बाबा क्या फरमाते हैं? है। तलफ़ुज़ दोनों के इन्होंने गलत बयान फरमाए। तो जवाब दुरुस्त नहीं माना जाएगा? चलो तो अब कफ़ारे में कुछ मदनी फीस का जी। ऐलान- अच्छा किया है? नहीं नहीं किया ना। नहीं, इन्होंने नियत तो की है मदनी काफिले की। हो सकता है इमामा शरीफ की नियत कर लें, कम से कम ये कि जब तक फैदान मदीना में है इमामा शरीफ सर पर सजा रहे। इंशाअल्लाह। कब से सजाएंगे? हाथों हाथ इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह, ज़ाहिर नसीब जुल्फे और मदनी हुलिया भी हो जाए तो क्या बात है। इंशाअल्लाह। अच्छा, आपका जवाब दुरुस्त मान लेते हैं। वैसे सही तलफ़ुज़ मुआद मीम पर पेश आएगा, और मुअव्वज़ ये अबू जहल की मौत में ये एराब लगे हुए होंगे। बापा ये दोबारा यही सही तलफ़ुज़ कह दें। जी जी। इस्लामी भाई आप सही तलफ़ुज़ दोबारा दोहरा दें जो बापा ने इरशाद फरमाया। हजरत मुआज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हजरत मुआवज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। मुअव्वज़ मुआवज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। रज़ी अल्लाह इनको बालिगान के मदरसतुल मदीना में जरूर पढ़ना है आपको। मदरसतुल मदीना बालिगान में अपने ऊपर बिल्कुल फैसला कर लें, आपके हक में बेहतर है, क्योंकि कुरान करीम दुरुस्त सीखना चाहिए। आप बेटे पढ़ लें, वो तो यहाँ जो पढ़ाया जाता है उसमें भी शरीक हो, और इसके बाद भी आपको मखारी यहाँ भी शायद शरीक होते हों, मुश्किल है। इनको बापा की इस्तेमाल की हुई प्लेट तोहफे में दी जानी है। मदनी मुन्नों का भी हमला खूब था वो जहल पर। मदनी मुन्नों का भी हमला खूब था वो जहल पर। बदर के उन दोनों नन्हे जानिसारों को सलाम। बदर के उन दोनों नन्हे जानिसारों को सलाम। ये नए रिसाले का बता रहे हैं कि 2 घोड़े लिखे हैं अबू जहल की मौत में। तो ये हो सकता है कि इल्मिया ने तहकीक करके इसमें तरकीब मेरे मशवरे से ही हुई हो सकता है, भूल गया हूं मैं। तो फिर जो, हाँ, तो इन नए रिसाले में जो लिखा है ना, उसी जवाब को दुरुस्त माना जाए। एक वाला जवाब तो फिर गलत हो गया, या वो भी दुरुस्त, उसने बेचारे ने पुराने में पढ़ा होगा, उसको भी। नहीं, एक तो मैंने कह दिया था ना, मैंने तो रिसाले में आपने देख करके दिया अच्छा, था। हाँ हाँ। तो रिसाले में एक लिखा हुआ था, लेकिन दुरुस्त जवाब 2 एक भी, ने एक दिया इस्लामी था। ने 2 कहे थे। एक तो इस्लामी ने। इन्हें भी अमील सुन्नत के इस्तेमाल वाली अगर प्लेट है मिट्टी की, वो दे दी जाए। इस नीयत से वो ले लेंगे, इसको मिट्टी के बर्तन में सवाब की नीयत से खाएंगे और इसको नाफिज करेंगे। घर में भी ये नाफिज होंगे मिट्टी के बर्तन, और मदीने की तस्बीह भी दे देंगे। इनको अमीर सुन्नत की इस्तेमाल की हुई प्लेट और इंशाअल्लाह मदीने की तस्बीह दी जाएगी।
बंगला जबान में सवाल महा उर्दू खुलासा। আসসালামু আলাইকুম। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बारकातुहू। আমি মোহাম্মদ ওয়াসিম, আমি লালমাটিয়ে থাকি। আপনার এখানে যেমন একটা রাস্তা দিয়ে গাড়ি যাইতেছে, এখন হঠাৎ করে দেখা গেল একটা ফেরা গাড়ি পাঞ্চার হয়ে গেছে, এখন পাশে একটা পাম্পের দোকানও আছে। এখন কি আপনার এই যে এই দোকানদারকে কি দোষারোপ করা কি এটা ঠিক হবে? हमारे इन वसीम भाई ने जो सवाल किया उसका कुछ इस तरह खुलासा है उर्दू में कि पंचर वालों पर ये इल्ज़ाम लगाना कि रास्ते में इन्होंने कीलें वगैरह फेंक दी हैं जिसकी वजह से हमारा टायर पंचर हो गया, जबकि कोई सबूत भी नहीं है उन लोगों के पास, तो क्या इस तरह का इल्ज़ाम लगाना दुरुस्त है? बराए करम हमारी रहनुमाई फरमा दीजिए। ये बहरहाल ज़रा मशहूर है। अब किसी पंक्चर वाले को टारगेट बना करके ना कि तुमने बिछाई है, ये तो सीधी सीधी बात है, उस पर बगैर शरई दलील के कहना ये तोहमत है और गुनाह है। अब मुतलकन कहना, जबकि ये मशहूर है कि भाई ये लोग बिछा देते हैं, तो किसी एक फर्द पर नहीं आया ना, तो इसलिए वो अब वो तोहमत की सूरत ना रही। अब बिछाते नहीं बिछाते, मुझे बहरहाल मैंने भी सुना है, क्या हकीकत क्या है पता है किसी को कि वाकई ऐसा है? सुना ही है बस। सुनी सुनाई बातें करनी नहीं चाहिए। और इस तरह सच्ची बात है कि ये बातें जब मशहूर होती है ना, तो जिसको आइडिया नहीं होगी उसको भी आइडिया आएगी कि ये भी हो सकता है। अब वो कील डालने से रास्ते में क्या वाकई वो पंक्चर हो भी जाता होगा, है ना? क्योंकि वो टायर तो बहुत मोटे होते हैं। कील खड़ी हो तो भी लेट जाइए जब गाड़ी जाएगी। किसी लकड़ी वगैरह की टुकड़ी में वो खड़ी की हो, है मुश्किल काम वैसे कील से इस तरह पंक्चर हो जाना। खड़ी कील से होती होगी, लेकिन कील लेट जाएगी। लेटी हुई कील जब नोक उसको लगेगी नहीं, और इसका सर छोटा सा होता है, सर इसका टायर फाड़ कर रबड़ के वो ट्यूब तक पहुंचे, ये थोड़ा नहीं मुश्किल। बाबा मोटरसाइकिल के अंदर जो होते हैं पंचर, उसमें से कील तो बरामद होता है। अब वो उसमें लाजी बात है, वो कील होता है तो वो चला जाता है टायर के अंदर। ये हो सकता है मोटरसाइकिल के पतले होते होंगे, लेकिन अब वो कील बरामद हुआ तो इससे ये साबित तो नहीं हुआ ना कि जी इन लोगों ने फेंका है, ये पंचर बनाने वालों ने। वो सब तो बुरे हो ही नहीं सकते ना, बगैर तहकीक के ना ही कहा जाए। पापा शायद इसमें टायर की क्वालिटी पर भी मुनफिर होता है कि वो कील अगर चाहे पड़ा भी हुआ है, लेकिन टायर अगर अच्छा है और नया है तो वो मुश्किल ही पंक्चर करेगा, और अगर पुराना टायर है तो शायद पंक्चर कर दे। हो सकता है ये भी। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम। अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। व अलैकुम अस्सलाम।